बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जो दो औरतों की बात की है, ये सूरह बकर में जो आयत नंबर है ना, इसमें 282 है, तो उसकी भी जो मैंडेट है ना कि 2 विटनेसेस फ्रॉम योर ओन मैन highlights yet another principle that in such case of financial stake of futuristic effect, longer duration of perpetual nature, preferable choice of witness have been advised to be from one's own community or relations. Similarly for female witnesses. So the stress is that whenever you are going to execute a document, a contract, which will take effect in the future obligations, then it's advisable that at least 2 witnesses should attest those documents. And 2 persons should be, and if 2 are not available, 1 is available, then the 2 women shall come into play, who will testify the same. Now, so far concerned, there is no compulsion at all that in any case there must be 2 women, because you cannot compel the woman to come in a court of law, because they have some other obligations to perform, which are only for the woman, and they cannot be avoided. It's a biological then. Suppose a woman has a suckling baby, so she cannot come in a court of law during that period. She has other some biological stress. So during that period, she cannot come in a court of law. So it is not the compulsion that in any case, at any cost, the woman must be the witness of that transaction. So it is only for the convenience. It is only for the convenience that if the man is not available, then for the convenience, because the 2 witnesses are necessary. So it may be 2 women, and women must be from the same tribe. It must not be from any woman. No, it must be the which have the mutual understanding, which have the mutual consent, which have the mutual social values, which have the mutual customs interse. So from every quarter, they must understand each other. So this is the crux, this is the rationale behind it, that why from the same vicinity, why from the same tribe, because they know each other, they know the action and reaction, so that they may easily can prove that matter in the presence of other people, that actually you did sign this and I am a witness to it. So this is the rationale behind it. तो कोई याद करा देना, ये नहीं कि औरतें हमेशा ही भूल जाती हैं, मर्द भी भूल जाते हैं. तो आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन द होली कुरान. दिस इज़ द मैंडेट लेड डाउन बाय होली कुरान. तो इसमें 2 औरतों को इसलिए कहा है कन्वीनियंस के लिए, तो अगर ना को हो सके, कई दफ़ा नहीं भी होता आदमी, तो वो औरतें भी तो आ जाए. तो ये है एक बात. दिस इज़ द मैंडेट लेड डाउन बाय होली कुरान. तो इसमें 2 औरतों को इसलिए कहा है कन्वीनियंस के लिए, तो अगर ना को हो सके, कई दफ़ा नहीं भी होता आदमी, तो वो औरतें भी तो आ जाए. तो ये है एक बात. अब फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए जाए, 2 इसमें जो कंडीशंस है इसमें वो है कि एक तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो किसी फिस्कल पॉलिसी का हो, जिसमें कुछ लेन देन का मसला हो, जिसमें किसी ने कोई लेना हो, किसी ने देना हो. और दूसरा उसका जो फैक्ट है, इट शुड हैव बीन टेकन प्लेस इन ए फ्यूचर. इसको फ्यूचर ऑब्लिगेशन कहते हैं कि जिसने कभी मैं कल या साल बाद ये इतने मैंने पैसे देने हैं, क्या पता उस वक्त कोई बंदा जिंदा हो ना हो, तो ताकि वो गवाह बन जाए, ताकि वो रियलाइज़ करवा सके. इसलिए 2 बेसिक जो प्री रेक्विजिट्स हैं उस डॉक्यूमेंट की, इट मस्ट परटेन टू द फिजिकल मैटर एंड देन इट मस्ट बी हैव सम इफेक्ट इन द फ्यूचर ऑब्लिगेशन. These 2 prerequisites should be mentioned. Then of course it shall be taken down, chalked down, and then the witness will certify and attest the same. Now अब attesting witness किसको कहते हैं?
अटेस्टिंग विटनेस इज ए विटनेस कि जिसके सामने कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया हो और उसने वो पढ़ा हो, फिर उसके बाद वो खुद उसको टेस्टिफाई करे, तो इसको कहेंगे हम, या उसके जो गवाह हैं वो भी उसके सामने लिखें, तो उसको कहते हैं टेस्टिंग विटनेसेस। अब इसमें एक आर्टिकल है 79 ऑफ कानून शहादत आर्डर, वो कहता है कि दो जो गवाह है ना, टेस्टिंग किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए वो दो गवाह को पेश करना ज़रूरी है। अगर वो कोई ना पेश हो तो वो डॉक्यूमेंट को वो कोर्ट में नहीं माना जाएगा, वो प्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो मस्ट है, इट्स ए कंपल्सरी टू प्रोड्यूस टू विटनेसेस, मार्जिन विटनेसेस। इसमें सिर्फ ये है कि इसकी और चीज़ है, इसकी कॉनोटेशन और है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ही है दोनों में। उसमें नंबर 1 तो ये है कि हर वो डॉक्यूमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी टेस्टेड। अब हम जब उस तरफ आएंगे तो फिर देखेंगे एवरी डॉक्यूमेंट को लॉ नहीं कहता कि इसको टेस्ट होना चाहिए, कुछ बगैर भी होना चाहिए, तो ये उसमें नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है इस तरह का कोई फिजिकल मैटर हो जो जिसकी अटेस्टेशन भी ज़रूरी हो, तो जिसकी भी अटेस्टेशन ज़रूरी होगी अंडर आर्टिकल 79, उसके दो गवाह हर हाल में उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए वो ज़रूरी होंगे। अगर ये भी कोई फिजिकल मैटर ऐसा ही हो कि जिसकी अटेस्टेशन अंडर द लॉ इज़ कंपल्सरी, फिर इसमें भी दो ही पेश करने पड़ेंगे। तो गवाह तो वैसे भी इसमें भी दो ही हैं, एक मर्द और दो औरतें या दो मर्द, ये तो ऐसे ही है। इसको मैं कंक्लूड करने लगा हूँ कि ये जो है ना कि नंबर ऑफ विटनेस, ये गवाही को हमेशा तोला जाता है, उसको देखा जाता है, उसको वे किया जाता है, उसको गिना नहीं जाता। तो सबसे जो क्वालिफिकेशन ये है, द एविडेंस हैज़ टू बी वेड नॉट टू बी काउंटेड, इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसी तरह गवाहान की भी जो क्रेडिबिलिटी है, उसका जो कैरेक्टर है, उसकी साउंड पोजीशन इन सोसाइटी है, अप टू व्हाट एक्सटेंट इट्स क्रेडिबल, एंड द entire reputation of that person, and whatever he is saying, whether it is plausible, reasonable in the given circumstances in which he is saying that I have seen that fact with my own eyes, then could it be possible for a man of ordinary prudence to presuppose it that actually it should have been happened? So it is the only the credibility, the character of that man who is deposing, not the number of those persons. This is not mentioned anywhere in the QANOON-E-SHAHADAT order that there must be 8 or 9 and 10 persons. It is the credibility, it is the veracity, it is the whole thing which has to be tested, that whether it rings true or not, whether it is credible or not. So paramount consideration is the credibility of a witness, the veracity of a witness, to see that whether whatever he is saying, it is reasonable, it rings true and it's believable. यही एक स्पिरिट है, रूह है इस पूरे एविडेंस एक्ट की, और हमारी वकालत की सफ़ा मिसल पे, जुडिशल फाइल पे नहीं आ सकता। एडमिसिबल होने के लिए हमें प्रोसीजरल लॉ की ज़रूरत होती है कि ये कानून शहादत आर्डर के तहत दो किस्म के लिए शहादत देनी है, ना क्वेश्चन इरेलेवेंट होगा ना जवाब इरेलेवेंट होगा। तो वो अदालत कहेगी कि इट हैज़ बिन प्रोहिबिटेड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड, जब उसने किसी स्टिक को बी से मारा है तो उसका मारना भी फैक्ट नहीं शो होगा। इंटेंशन इज ऑलवेज गैदर्ड फ्रॉम एक्ट ऑफ ए मैन, जिसके उसको ब्रेन का डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो गया, स्कल की बोन टूट गई है, तो दिस इज द कन्फेशन ओनली विच इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। वेल, दूसरी पार्टी को भी ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। इवन द डेविल डोंट नो द इंटेंशन ऑफ ए मैन।